Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BrainSpark by Mahi. Okay, so in the previous lecture we have covered the nomenclature of the complex branches. I hope वो वाला topic सबको समझ आ गया होगा and these were the few questions which I gave you in the previous class आप लोगों की practice के लिए. तो I hope ये वाले questions सबने कर लिए होंगे. So now I'll be discussing their answers and you have to recheck कि सबने सही naming की है या फिर नहीं. Okay. So let's start by our first example. Okay, so how we'll be doing the numbering? Tell me numbering किधर से होगी शुरू? From the right or from the left? Okay, so I told you कि numbering हमेशा किस basis पे होती है? Numbering का priority order मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, right? So उसी basis पे हम इस side से numbering करेंगे. Okay? ऑन द बेसिस ऑफ द लोएस्ट लोकेंट रूल. जब आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखोगे तो यू विल फाइंड कि इसी साइड से जो ब्रांचेस हैं उनको छोटे नंबर मिल रहे हैं. ओके, सो या नंबरिंग हो गई है. नाउ व्हाट आर द थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स यू आर हैविंग हेयर? द थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स आर दिस नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इथाइल ग्रुप. नाउ you have to name them according to the alphabetical order. Okay, that is but obvious. इन तीनों branches को आपको alphabetically name करना है. And I also told you in the case of complex branches, the D of di, the T of tri and the T of tetra are considered in writing the name. So आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी and कौन सी बाद में. Okay, so इसकी naming क्या हो जाएगी? Just a second. सबसे पहले we'll be writing second position पे we are having an ethyl group. E comes first, right? उसके बाद sixth position पे okay, so हमने complex branch की भी numbering करनी पड़ेगी because this is your complex branch, right? So complex branch की numbering कैसे होगी? This carbon, it is connected to the main chain, so इसको हम क्या देंगे? Number 1. This is your 1 prime. This will be your 2 prime. So first prime पे we are having the two methyl groups attached. Okay. So sixth position पे 1 prime dimethyl. Total carbon atoms are 2. Ethyl. Okay, so this branch is also done. And on the fourth position we are having a nitro group. 4 nitro. And total carbon atoms are 8. So octane. Okay, so this will be your name for this complete compound. I hope ये वाली naming सबकी सही होगी. It was an easy one, right? पहले आपको numbering identify करनी है. Then you have to name the branches alphabetically. That's all you need to do. Okay? Now here we have considered the D of the di word. इसलिए ये complex branch जो है वो nitro group से पहले आई है. Okay? I hope I'm clear. Okay, so now let's move on to the next example. Yes, so यहाँ पे भी numbering कैसे करेंगे हम? On the basis of the lowest locant rule. So यहाँ से numbering होगी. मैं नंबरिंग डायरेक्ट कर रही हूँ. अगर किसी को भी नंबरिंग में कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ जस्ट कमेंट डाउन बिलो. मैं नंबरिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी फिर. ओके, सो नंबरिंग इज़ डन. नाउ वी हैव टू राइट द नेम. हेयर वी आर हैविंग ओनली 2 ब्रांचेस. वन इज़ दिस एंड द अदर वन इज़ दिस. अब हम इनको अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे. फिफ्थ पोजीशन पे वी आर हैविंग एन इथाइल ग्रुप, सो 5 इथाइल. थर्ड पोजीशन पे अ मीथाइल ग्रुप, सो मीथाइल. Total carbon atoms are 8, so oct. And I told you in the previous lecture कि जब हमारे पास multiple double या triple bonds होते हैं तो word root के साथ हम a word add कर देते हैं. तो it will be octa 1 7 diene because there are 2 double bonds, so diene. Okay, so this was an easy example. इसमें कोई complex branch नहीं थी. Okay, this is clear. Now the third example. Yes, again numbering यहाँ से होगी on the basis of the again the lowest locant rule. 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so here we are having 3 substituents. One is this and one is this.
ओके, सो दिस वन द थर्ड नाइट्रो वन, इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, क्योंकि व्हेन यू विल सी ये इस वाले कार्बन से नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, नॉट टू द कार्बन ऑफ द मेन चेन. ओके, सो इसकी अलग से नंबरिंग होगी कॉम्प्लेक्स ब्रांच की. दिस इज योर 1 प्राइम. ओके, नाउ दिस इज योर सिंपल इथाइल ग्रुप. ओके, यस, सो नंबर अब हम नेम लिखेंगे इसका. यस, so again alphabetically first will be your chloro group, so 5 chloro, 3 ethyl, then the complex branch. 7th position पे you are having 1 prime nitro, total carbon atoms are 1 only, so methyl, nitromethyl, total carbon atoms are 10, so decane. ओके, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी. ओके, सो आई होप द अबव 3 एग्जाम्पल्स आर प्रिटी मच क्लियर. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल. yes, so 2 numbers are followed, 3 4 5 6 7 and 8. okay, so now numbering is done and naming. 7th position पे we are having a bromo group, so 7 bromo. ओके, सो दिस 6th पोजिशन में वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो उसकी भी नंबरिंग होगी. दिस इज़ योर 1 प्राइम, दिस इज़ योर 2 प्राइम. ओके, एंड दिस इज़ योर सिंपल इथाइल ग्रुप. ओके, यस, सो 5th 7th ब्रोमो, 5 इथाइल, देन 6th पोजिशन पे 1 प्राइम पर मिथाइल, टोटल कार्बन एटम्स आर 2, सो इथाइल, and total carbon atoms are 8, so oct for 8, and only one double bond is present, so oct, I am having a lesser space, so oct 3 ene. okay, आई होप ये चीज़ सबको समझ आई होगी कि यहाँ पे एक सिंगल ही डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने ए वर्ड ऐड नहीं किया है. ओके, yes, so these were the few examples I gave you for your practice. I hope सबने सबकी नेमिंग ठीक की होगी. अगर किसी को किसी भी नेमिंग में कोई डाउट है या फिर नंबरिंग में कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, I'll resolve your queries. okay, okay, so this is done. Now let's move on to the today's topic. okay, so what is our today's topic? आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड उनको हम कैसे यूज़ करते हैं एक कंपाउंड में. ओके, this is our topic for today's lecture, so let's start. okay, functional groups अलग अलग बहुत सारे functional groups होते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड सबका अलग एक नाम होता है विच इज़ सफिक्स 2, जो हम सफिक्स 2 की तरह यूज़ करते हैं. ओके, सो एंड दिस इज़ ऑल्सो द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर योर फंक्शनल ग्रुप्स. as we are going down, the priority of the functional groups is decreasing. what I mean by this is like कार्बोक्स एक कंपाउंड है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है एंड सल्फोनिक एसिड भी है, तो छोटा नंबर किसको मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी गेटिंग योर स्मॉलर नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर प्रायोरिटी देन योर सल्फोनिक एसिड. ओके, एंड सिमिलरली जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं योर प्रायोरिटी इज़ डिक्रीजिंग. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. किसके लिए हम कौन सा सफिक्स 2 यूज़ करते हैं? जस्ट अ सेकेंड. यस, so for carboxylic acid we use oic acid, for sulfonic acid we use sulfonic acid only, for anhydride we use oic anhydride, for ester we use O8, for acid chloride we use oil chloride, for acid amide we use amide only, for cyanide we use nitrile, and for isocyanide we use isonitrile. okay, then for aldehyde we use al, for ketone we use one, for alcohol we use ol, for thiol we use thiol only, and for amine we use amine only. okay, so these are the names of the functional groups which you have to use in your compound. जब कोई भी functional group एक compound में present होगा तो आपको ऐसे ये वाले names उनके use करने हैं. okay, yes,
सो नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दिस इज़ योर मिथॉक्सी ग्रुप. आई टोल्ड यू OR, दिस इज़ योर मिथॉक्सी. फॉर एग्जाम्पल अगर O के बाद आपका CH2CH3 होता तो क्या बन जाता, इथॉक्सी. बट हेयर वी आर हैविंग OCH3, सो इट इज़ योर methoxy. Now one is carboxylic acid and one is your methoxy group. Obviously you will name them according to the alphabetical order. Okay, so for methoxy, pent second position पे we are having a double bond, pent 2ene, and first position पे we are having a carboxylic acid. And I told you for carboxylic acid we use the suffix oic acid, which is evident here. Okay, so I hope ये वाला example clear है. Yes. Okay, so another example, this. Okay, so इस केस में this example is a good one. इसमें हम यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकते थे. Let me use a different color pen. Just a second. Yeah, we could number from here as well. 1 2 3 4 5 6 and 7. Then why we are considering the green numbering only? Because NO2, this is not any functional group, this is your substituent. Okay, अभी हम जितने भी functional groups पढ़े हैं उनमें कहीं NO2 था, नहीं था, because NO2 is not a functional group, it is a substituent. Okay, and always the priority of the functional group is more than the substituent. Okay, सो अगर एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्सटीट्यूएंट भी है तो आपको फंक्शनल ग्रुप को एक छोटा नंबर देना होगा, बिकॉज इट होल्ड्स मोर प्रायोरिटी देन द सब्सटीट्यूएंट कंपाउंड. ओके, सो इसलिए हमने ये ग्रीन वाली नंबरिंग को ही कंसीडर किया है. ओके ओके, सो फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप एंड थर्ड पोजीशन पे दिस इज योर सल्फोनिक एसिड. So 5 nitro, total carbon atoms are 7, so hepta. 4th position पे and 6th position पे are double bonds, so 4,6 diene, and 3rd position पे we are having sulfonic acid. Okay, I hope this example is also clear and this is an important point. ये आपको नंबरिंग के टाइम पे बताया था मैंने. प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है नंबरिंग की, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलता है एंड उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को कंसीडर किया जाता है. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, सो इट इज़ अ डिफरेंट केस. एनहाइड्राइड का जो केस है वो थोड़ा अलग होता है, सो आई एक्सप्लेन यू हेयर. जस्ट अ सेकेंड. देर आर 2 types of anhydride. Okay, so first is your unsymmetrical anhydride. Unsymmetrical anhydride. Now, what do you mean by unsymmetrical anhydride? As the word suggests, unsymmetrical means there is no symmetry on the either side of the anhydride group. What I mean by that is, see for example, C double bond O, O, C double bond O. Okay. Yes. So, this C double bond O, single bond O and C double bond O, this is your anhydride group. This is your anhydride group, right? So, इसको आपने circle कर लिया. Now, you have to number the carbon atoms attached to the either side of the anhydride group. So, this is 1, 2 and this is 1, 2 and 3. Okay, so this is unsymmetrical anhydride क्योंकि anhydride group के दोनों sides पे you are having different number of carbon atoms. Okay, so अब हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? इसकी नेमिंग होगी अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. हमने क्या पढ़ा था? एनहाइड्राइड के सफिक्स क्या होता है? देख के बताओ, एनहाइड्राइड के लिए कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग? ओके, सो इट वॉज ओइक एनहाइड्राइड. ओइक एनहाइड्राइड, यस, यही था. सो या अब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे. 2 कार्बन्स मीन्स इथेनोइक and 3 carbons means propanoic. So E comes first, right? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक, then propanoic, anhydride, right?
I hope it is clear. You have to do nothing. You just have to identify the anhydride group first. Then you have to count the number of carbon atoms on the either side of the anhydride group, and then you have to name it according to the alphabetical order. That's all you have to do. Okay? So एक और example करा देती हूँ मैं आपको better clarity के लिए. Yeah. So your second example. Just a second. ऐसे ही लिख लेते हैं हम. Okay, so this is your example. Now, first thing what I told you is you have to identify the anhydride group. Okay, so this is your anhydride group. It is done. Now you have to number the carbon atoms on the either side of the anhydride group. 1, 2, and this is 1. Now you have to name it alphabetically. So simple, right? So first comes ethanoic. Then from one carbon atom we use methanoic, anhydride. ठीक है, सबको अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैसे उनकी नेमिंग होती है. ओके, सो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड इज डन. नाउ मूव ऑन टू द सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड. ओके, आई एम इरेजिंग इट. एक बार देख लो आप इस पेज को, आपको समझ आ जाना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल की नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग. ओके, सो आई होप इट इज़ डन. ओके, मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ सिमेट्रिकल के लिए, आपको समझ आ जाएगा. सो नेक्स्ट सेकेंड केस ऑफ एनहाइड्राइड इज symmetrical anhydride. Now, as the word suggests, symmetrical means the anhydride group which will be having the same number of carbon atoms on the either sides. Okay, so एक example बनाते हैं हम. So here we are having 2 and here also we are having 2. So first thing, same procedure है, इसमें भी आपको पहले एनहाइड्राइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज योर एनहाइड्राइड ग्रुप, सर्कल कर लिया. नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यू हैव टू काउंट. 1 2 1 2. ओके, सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द एनहाइड्राइड ग्रुप आर सेम. सो दिस इज योर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, राइट? सो नाउ द नेमिंग फॉर इट. अब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ राइटिंग सेम थिंग ट्वाइस, राइट? सो हम इसको एक ही बार लिखेंगे. इट विल बी इथेनोइक. जस्ट अ सेकेंड. इथेनोइक एनहाइड्राइड, बिकॉज द कार्बन एटम्स आर 2 and the suffix we use for anhydride group is oic anhydride. Okay, clear? सिमेट्रिकल का तो और भी आसान है. एक और एग्जाम्पल कराते हैं. एक सेकेंड. Okay, so first thing, identify the anhydride group. This one. Count the number of carbon atoms. 1 1. Okay, so both sides we are having 1 carbon atom. So your name would be, for 1 we use methanoic anhydride. Clear and simple also, right? Okay, so कंसीडर हो गया, आप लोगों को समझ आ गया ये चीज़, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज़ ओनली लिटन, यही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर कि अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के केस में वी राइट एल्कोनिक एनहाइड्राइड. सी फॉर हेयर 3 कार्बन एटम्स 2 कार्बन एटम्स, सो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. And in symmetrical anhydride we only write the name once. 3 carbon atom, so propanoic anhydride. ओके, ये आपको ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल सकता है, विच इज़ द सेम थिंग. वो तो हमने पढ़ लिया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है. ओके,
सो एक और आपका स्पेशल केस है विच इज़ ऑफ योर एस्टर. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस. नाउ एस्टर में क्या होता है, एस्टर कौन सा ग्रुप होता है, पहली बात तो इट इज़ COOR. नाउ दिस R group, it could be anything, it could be CH3, it could be CH2, CH3 or whatever, methyl, ethyl, propyl, butyl, कुछ भी हो सकता है, right? Okay, so in this compound you're having, this is your COO and this CH3, this is your R group here. Okay, सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है एस्टर के केस में, एल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड विद द एस्टर इज रिटन फर्स्ट वाइल राइटिंग द नेम. नाउ यू हैव टू, आप भूल जाओ एक मिनट के लिए सारे रूल्स जो अब तक हमने पढ़े हैं नेमिंग के. नो अल्फ़ाबेटिकल नथिंग. द फर्स्ट थिंग जो अगर आपको एक कंपाउंड में दिख रहा है कि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग में आपको सबसे पहले द आर ग्रुप अटैच्ड टू द एस्टर उसका नाम लिखना है. भूल जाओ सारे रूल्स, ओनली द आर ग्रुप अटैच्ड उसका नाम सबसे पहले आएगा. सी फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सबसे पहले हमने क्या लिखा है, मीथाइल. Irrespective of every rule we have studied till now, we have written the name of R group first because it is the rule in writing the name of esters. Okay, so methyl, then third position पे we are having a bromo group, so 3 bromo. Hexane, first position पे we are having a ester group, so for ester we use O8. Okay, I hope it is clear. Yeah, सो ये दो स्पेशल केसेस थे, ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड एस्टर. ओके, दिस इज डन. दीज आर मोर एग्जाम्पल्स फॉर योर क्लैरिटी. सी इन दिस एग्जाम्पल दिस इज योर COO and this whole, this is your R group. What is this? This is your ethyl group, right? तो irrespective of all the rules, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ethyl. ओके, देन फिर आप अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे बाकी चीज़ों को. थर्ड पोजीशन पे यू आर हैविंग एन आयोडो ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे अ फेनाइल ग्रुप, देन पेंट, सेकंड पोजीशन पे ईन एंड फर्स्ट पोजीशन पे एस्टर ग्रुप, सो O8. क्लियर? नाउ दीज आर द टू सेम एग्जाम्पल्स, आपको समझ आ जाएंगे अब आप इनको रीड करेंगे तो. ओके, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. CN, एक सेकेंड, CN and NC, these are the two different functional groups. Now इसको कैसे चेक करोगे आप, see for example in this carbon chain, this is a carbon chain, इससे क्या कनेक्टेड है, which atom is connected to the carbon chain, nitrogen is connected, right? So it will be your isonitrile. Okay, so इसकी जगह पे अगर ये होता, अगर हम ऐसे लिखते तो क्या होता, तो मेन कार्बन चेन से क्या कनेक्टेड है, कार्बन, तो क्या लिखते हम, नाइट्राइल. ओके, सो यू हैव टू चेक कि कौन सा एटम मेन चेन से कनेक्टेड है. क्लियर? ओके, सो दिस पार्ट इज डन. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विच इज़ योर प्रीफिक्स 2. नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंपाउंड जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो प्रायोरिटी तो आप किसी एक को ही दे सकते हो, राइट? ओनली अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप कुड बी कंसीडर्ड एट द प्रायोरिटी. तो जो बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर ट्रीटेड एज प्रीफिक्स 2. ओके, ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से समझ आएगी. अभी आप ये नेम्स देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल सी, दीज आर योर नेम्स, पहले आप ये नेम्स देखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से. फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रीफिक्स 2 वी यूज़ कार्बोक्सी. फॉर सल्फोनिक एसिड वी यूज़ सल्फो. फॉर सल्फोनिक एसिड सफिक्स में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सल्फोनिक एसिड, एंड एज प्रीफिक्स 2 वी आर यूजिंग सल्फो. एनहाइड्राइड के लिए हमारे पास कोई नेम नहीं है. एस्टर के लिए इट इज़ एल्कोक्सी कार्बोनाइल. फॉर एसिड क्लोराइड इट इज़ क्लोरोकार्बोनाइल. फॉर एसिड अमाइड इट इज़ कार्ब अमोइल. For cyanide we have cyano. For isocyanide, okay, so cyanide is CN and isocyanide is NC. Okay, for isocyanide we have isocyano. For aldehyde we have aldo and formyl. इसको हम देखेंगे कि कब aldo यूज़ होता है और कब formyl. And similarly for ketone we have keto and oxo. For alcohol we have hydroxy. For thiol we have mercapto. For amine we have amino.
ओके, सो नाउ अब आपको एग्जाम्पल्स से समझ आएगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, तभी आपको समझ आएगा. सी, here we are having a carboxylic group, here we are having a aldehyde group, and here we are having a chloro group. Okay, so yeah, अब इस कंपाउंड में यू आर हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज एल्डिहाइड ग्रुप. नाउ किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? अभी हमने प्रायोरिटी लिस्ट में देखा था, द प्रायोरिटी इज़ मोर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो टॉप पे ही आता है. ओके, सो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. दैट इज़, ये चीज़ सबको समझ आई कि नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही स्टार्ट करेंगे और इसके कार्बन को भी हम प्रिंसिपल चेन में कंसीडर करेंगे. सो दिस विल बी योर 1. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, नंबरिंग हो गई. नाउ हमने किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना है? माना क्या है मतलब, वो तो होता ही है क्योंकि हमने अभी प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ी थी. कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, दिस इज़ योर फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. नाउ for carboxylic acid, as it is your principal functional group, उसका हम क्या यूज़ करेंगे? suffix. And for aldehyde group we will be using the prefix name which we just studied. अब सबको समझ आया? जो भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका तो हम सफिक्स वाला नेम यूज़ करते हैं, और बाकी बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनका हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज दे बिकम द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, सो दे आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस एंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज़ यूज्ड एज योर सफिक्स. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ हम नेमिंग तो हो गई, अब हम नाम लिखते हैं. प्रीफिक्स पहले आता है, राइट, सो पहले हमें इन दोनों का नाम लिखना है, एंड सफिक्स इट कम्स एट लास्ट. सो इनको अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे हम. 4th पोजीशन पे वी आर हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप. सो एल्डिहाइड का क्या नाम होता है? 4th पोजीशन पे वी आर हैविंग व्हाट? हमने क्या पढ़ा था? प्रीफिक्स 2 क्या होता है एल्डिहाइड के लिए? इट वाज एल्डो या फिर फॉर्माइल. नाउ अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कब एल्डो यूज़ होगा एंड कब फॉर्माइल यूज़ होगा? सी, इसी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड. सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर मेन चेन, दिस इज़ योर कार्बन की मेन चेन, राइट. दिस, लेट मी हाइलाइट, दिस इज़ योर मेन चेन. इस मेन चेन से कनेक्टेड है आपका CHO ग्रुप. तो जो CHO ग्रुप का कार्बन है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन, राइट. ये तो एक सब्सटीट्यूएंट की तरह यहाँ पे है. तो when the carbon of the aldehyde group it is not considered in the main chain, तो हम क्या नेम यूज़ करते हैं उसके लिए? फॉर्माइल. ओके, सो when the carbon of the aldehyde group it is not considered in the main chain, the name used is फॉर्माइल. एंड जब इसको भी हम नंबर करते, फॉर एग्जाम्पल ये 4 के बाद हम नंबरिंग 5 इधर करते तो इसका कार्बन काउंट होता मेन चेन में, राइट. तो देन वी विल बी यूजिंग द वर्ड एल्डो. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. ये मैं आपको और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा. आई हैव टू ड्रॉ दैट अगेन, जस्ट अ सेकेंड. तो है बस CHO क्लोरीन. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो नो मैटर, 8 कार्बन एटम्स हैं इस चेन में. ओके, सो इट इज़ क्लियर. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दीज बोथ विल बी एक्टिंग एज योर प्रीफिक्सेस नाउ. ओके, सो अब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं. कार्बन कंसिडर नहीं हो रहा है, द नेम यूज्ड विल बी फॉर्माइल. ओके, सो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे. तो ऑब्वियसली फर्स्ट विल बी 6 क्लोरो, 4th पोजीशन पे फॉर्माइल. Then comes your word root, the total carbon atoms in the main chain, which is your 8. So oct, and first position पे we are having an oic acid, oct 1 oic acid. Okay, carboxylic acid का suffix oic acid था, if you remember. Okay,
सो दिस वॉज योर वन एग्जाम्पल. आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि कब सफिक्स यूज़ होना है, कब प्रीफिक्स यूज़ होना है, सबको समझ आ गया होगा. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. लेट्स टेक CHO हेयर. तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कार्बन कब काउंट होगा. लेट्स टेक SO3H विच इज योर सल्फोनिक एसिड एंड डबल बॉन्ड. या नाउ नंबरिंग. ओके, सो अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? इट इज़ सल्फोनिक एसिड की या फिर एल्डिहाइड ग्रुप की? सल्फोनिक एसिड की, राइट. सो सल्फोनिक एसिड को छोटा नंबर मिलेगा एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. एंड CHO वापस से किसकी तरह एक्ट करेगा? एज योर प्रीफिक्स. ओके, सो अब हम किस तरह से नंबरिंग करें कि SO3H को छोटा नंबर मिलेगा? इधर से इट इज़ गेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4. सो यहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, सो अब जो ये CHO वाला कार्बन है इट इज़ काउंटेड इन द मेन चेन. इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया है. सो नाउ इसका क्या यूज़ होगा? बताओ कौन सा नेम यूज़ होगा अब इसका? एल्डो. ओके, क्योंकि इसका कार्बन काउंटेड है इन द मेन चेन. ओके, सो 1 एल्डो. देन फिफ्थ पोजिशन में वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड. 1 एल्डो ऑक्ट 5 इन एंड फोर्थ पोजिशन पे वी आर हैविंग 4 सल्फोनिक एसिड. ओके, सो ये दोनों एग्जाम्पल्स थे. आई होप इन दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गया होगा कि किसको कब हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं एंड कब उसका प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं. ओके, सो यही एग्जाम्पल्स आपके इधर हैं. सी हेयर फॉर एग्जाम्पल, in this case this is an important example. Here this is your which group? ketonic group. सेकेंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है एंड फर्स्ट पोजीशन पे वी आर हैविंग एसिड ब्रोमाइड. ओके, मैंने क्या बताया था? एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड क्या था? COCl. सो अगर हमारे पास COBr है तो इट बिकम्स योर एसिड ब्रोमाइड. COI है तो इट बिकम्स योर एसिड आयोडाइड. ओके, तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है. तो फर्स्ट पोजीशन पे वी आर हैविंग एसिड ब्रोमाइड, क्योंकि एसिड ब्रोमाइड की प्रायोरिटी जो है इट इज़ मोर देन द कीटोनिक ग्रुप, तो इसलिए हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है. ओके, सो फर्स्ट पोजीशन पे इट इज़ एसिड ब्रोमाइड एंड सेकेंड पोजीशन पे इट इज़ योर कीटोनिक ग्रुप. सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज़ एसिड ब्रोमाइड, राइट. तो आपका कीटोनिक ग्रुप क्या होगा? प्रीफिक्स की तरह यूज़ होगा. तो द प्रीफिक्स फॉर कीटोनिक ग्रुप वॉज कीटो और ऑक्सो. सो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें हम कीटो या ऑक्सो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो सेकेंड पोजीशन पे इट इज़ ऑक्सो प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड. ओके, फॉर आई एम सॉरी, फॉर क्लोराइड इट वॉज ऑयल क्लोराइड. सिमिलरली फॉर ब्रोमाइड इट इज़ ऑयल ब्रोमाइड. क्लियर? ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स अब आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने समझा दिया है. नाउ दिस इज़ द पॉइंट जो मैंने अभी बताया था, वो यहाँ पे लिखा है. व्हेन द कार्बन ऑफ CHO इज काउंटेड इन द मेन चेन तो द नेम यूज्ड इज एल्डो, एंड व्हेन द कार्बन ऑफ द CHO इज नॉट काउंटेड इन द मेन चेन देन द वर्ड यूज्ड इज फॉर्माइल. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टार पॉइंट, तो आपको ये याद रखना है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस कंपाउंड, again the carboxylic acid will get a lower number. It is the principal functional group. So 1 2 3 and 4. Fourth position is given to the carbon of the CHO group. काउंट हो रहा है मेन चेन में तो कौन सा नाम यूज़ होगा? फॉर्माइल. ओ आई एम सो सॉरी, काउंट हो रहा है तो कौन सा यूज़ होगा? एल्डो. ओके, सो फोर्थ पोजीशन पे एल्डो. टोटल कार्बन आइटम्स आर 4, सो ब्यूटेनोइक एसिड. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. एल्डो फॉर्माइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. In this case 1 2 and 3. थर्ड पोजीशन पे यू आर हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप. इसका कार्बन जो है ये काउंट नहीं हो रहा इन द मेन चेन. सी नहीं हो रहा, इसको कोई नंबर नहीं दिया हुआ हमने. तो नाउ वील बी यूजिंग द वर्ड फॉर्माइल. 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक
एसिड। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। आल्डो फॉर्माइल कब कैसे यूज़ होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे हम, कौन सा कंपाउंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा एंड कौन सा किसका सफिक्स टू यूज़ होगा। ओके, ये चीज़ सबको समझ आ गई है अब। सो नाउ इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने पढ़ा है अबाउट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, एंड अबाउट द पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर. So in the next class we'll be continuing with the naming of the cyclo compounds, which is also an important topic. So yeah, these are the few questions which I have prepared for you guys, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आज की क्लास अच्छे से करने के बाद these are the questions you need to practice at home. जिसका भी आंसर्स हो जाए they can comment down their answers below. I'll pin the one जिसके आंसर्स ठीक होंगे। ओके, सो या प्लीज़ नोट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड अगली क्लास में मैं इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। सो सब करके लाना ये क्वेश्चंस। नॉमेनक्लेचर के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें अबाउट द नंबरिंग, अबाउट व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो या दीज आर द 2 pages ऑफ क्वेश्चंस। ओके ओके, सो नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। एट क्वेश्चंस आर देयर। ओके, एंड ये उन्हीं बेसिस पे हैं जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को समझाया है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो अटक सकता है आप लोगों का, सब हमने आज डिस्कस किया है क्लास में। ओके, सो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर गाइस। आई होप सबको सब कुछ समझ आया होगा।